Good evening class. Today we will discuss the revision part of organism and its population. Okay, so most of the points we have discussed already: death rate, growth rate and population density, and what is population and what is the species and community also. Okay, so apart from that we have to discuss as a revision part for which topic is generally a very important to their must chances to come in the board exams. Okay, so we are going to discuss one of the most topic, and so many times we have seen that these types of topic may be asked in your board exams. The topic is, the first one is, we are going to discuss that special features of any population. Okay, so what is the special feature and what is the meaning of population? So firstly we will discuss one by one. So population, we know that पॉपुलेशन मीन्स अ कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स एंड मे बी प्लांट्स आर ह्यूमंस, यानी ऐसी कम्युनिटी जो जनरली किसी एनिमल से रिलेटेड हो, प्लांट से रिलेटेड हो या फिर किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो, अमॉन्ग हुज द मेंबर्स इंटरब्रीडिंग ऑकर्स, जिसमें इंटरब्रीडिंग होता है. जनरली in breeding system we know that some of the organisms are capable to produce their young ones, but the breeding is generally two types. First is interbreeding, means same type of species, and second is crossbreeding. Crossbreeding means two different types of species. So most important, the community of animals, चाहे वो animals हो, चाहे वो plants हो, चाहे वो human beings हो, among whose the members interbreeding occur, जिनमें interbreeding occurs होते हैं, and they have great tendency to promote and produce their offspring are called population. इसी शब्द को हम population कहते हैं, and it is a very important topic because so many times this topic comes with maybe 2 or 3 marks. Okay, population and population density. So apart from that we are going to discuss that special features of any population. किसी भी population के special features क्या क्या हो सकते हैं. Okay, so the first one is the special features of any population is population density. पॉपुलेशन, उनकी डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी में कितना यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कितने स्पीसीज वहां पे बिलोंग करते हैं, या कितना इनका यूनिट एरिया है. सेकंड, ग्रोथ रेट. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक because in last year I think growth rate, that rate comes I think came for 4 marks, जो कि करीबन मेरे ख्याल से 3 या 4 मार्क्स में पूछा गया है. So growth rate and death rate is a very important topic, and this topic is mostly comes in the board exam. ज्यादातर आते हैं ये questions. So growth rate means we know that very well, if the population is increasing day by day, it means that population is increasing day by day, it is called growth rate. And if the population is decreasing, mid डेथ रेट उसमें बढ़ता जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड डेथ रेट. ठीक है, ग्रोथ रेट में पॉपुलेशन इंक्रीज होता जाएगा, डेथ रेट में पॉपुलेशन हमारा कम होते जाएगा. सो दैट इज द टू डिफरेंट थिंग. सो ग्रोथ रेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड डेथ रेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. वी विल डिस्कस वन बाय वन इन अ स्पेशल टाइप ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्मूले से हम उसको भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन. उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन उनके वो डिफाइंड होते हैं. नेक्स्ट, biotic capacity. We know that in our environment there is a two different types of systems are generally exhibit. The first one is biotic and second is abiotic. So biotic factor is those factor in which most of the living beings are generally comprises. यानी biotic factor में maximum बायोटिक फैक्टर्स ही आते हैं, जैसे जिनमें लाइफ होती है, लिविंग बींग्स होते हैं. एंड अबायोटिक फैक्टर्स में मोस्ट ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स जनरली कंप्राइजेस. उसमें नॉन लिविंग थिंग्स जो है एग्जिबिट करती है. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर नॉन लिविंग थिंग, प्रेशर नॉन लिविंग थिंग्स, ह्यूमिडिटी नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, सॉइल एटसेट्रा. सो दीज आर दी नॉन लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स जिनमें लाइफ नहीं होती है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोटिक कैपेसिटी जो है वो भी एक स्पेशल फीचर है किसी भी पॉपुलेशन का. क्यों? क्योंकि अगर बायोटिक कैपेसिटी अगर अच्छी नहीं होगी, इट मींस दैट देयर इज अ वेरी लेस इन नंबर ऑफ लिविंग बींग्स, इट मींस दैट इट इज नॉट एग्जैक्ट एंड स्पेशल फीचर ऑफ पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन को पहली बात तो बायोटिक फैक्टर से सबसे ज्यादा डिफाइन करते हैं. अगर बायोटिक फैक्टर्स ही नहीं होंगे सो पॉपुलेशन हमारा होगा ही नहीं. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. नेक्स्ट, चेंजेस ऑफ पॉपुलेशन. सो चेंजेस ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज ग्रोथ रेट इन द मिडिल ऑफ द ईयर. अगर मिडिल ऑफ द ईयर में अगर ग्रोथ का इंक्रीज होते जा रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रोथ रेट. और अगर उसी मिडिल ऑफ द ईयर में
डेथ रेट हमारा बढ़ता चला जा रहा है, इट मीन्स पैदा होने से ज्यादा ह्यूमन बींग्स सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उनकी डेथ हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड डेथ रेट. सो चेंजेस ऑफ पॉपुलेशन इज आल्सो occurs on the basis of two types. First is death rate and growth rate. We will discuss one by one in a detailed manner. Okay, next, population dispersion. Population dispersion is a very important and it's a very drastic changes in the population, because population dispersion means it is a special type of feature in which population means living beings are biotic factors generally creates problem for oneself, and some of the external features is also makes responsible for immigration or migration from one place to another that creates the very disturbance in the population dispersion. इसमें क्या होता है, कुछ ह्यूमन बींग्स तो अपने लिए खुद के लिए जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ ऐसे एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिस कारण से ह्यूमन बींग्स और प्लस एनिमल्स को भी काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, जिस कारण से वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप को सेव करने के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन, इमिग्रेशन वगैरह. वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरी टॉपिक. ओके, सो दैट इज कॉल्ड आल्सो पॉपुलेशन डिस्पर्सन. पॉपुलेशन डिस्पर्सन इज अ वेरी ड्रास्टिक चेंज व्हिच टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बींग्स. ओके, ये ह्यूमन बींग्स में होता है मोस्टली एंड एनिमल्स आल्सो, ठीक है. इनमें सबसे ज्यादा डिस्पर्सन देखा जाता है, मीन्स ये अपने एरिया को डिस्पर्स करके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं. जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो समर को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कैन नॉट सपोर्ट द कोल्ड आल्सो. सो इनके लिए कोल्ड और समर दोनों भी काफी प्रॉब्लमेटिक होते हैं. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज आर दी 7 स्पेशल फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन. किसी भी पॉपुलेशन के लिए ये 7 ऐसे फीचर्स हैं जो कि इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन डेंसिटी, सेकंड ग्रोथ रेट, थर्ड अगर हम देखते हैं डेथ रेट, नेक्स्ट एज डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट वन इज बायोटिक कैपेसिटी, चेंज ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डिस्पर्सन. पॉपुलेशन डिस्पर्सन मतलब होता है द डिस्पर्सिंग मीडियम ऑफ बायोटिक फैक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डिस्पर्सन. इसी को हम पॉपुलेशन डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं, ठीक है. सो we are going to discuss population density because we have already completed population. What is the meaning of population? So we are going to discuss the population density. What is the meaning of population density? So population density is a measurement of population. Population density means ये population density का ऐसा measurement होता है जो कि पर यूनिट एरिया के हिसाब से या फिर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से मेजर किया जाता है कि हाउ मच पॉपुलेशन आर देयर, कितनी पॉपुलेशन, कितनी जनसंख्या है वहां पे. दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स. ओके, next feature, growth rate. What is the meaning of growth rate? Growth rate, we know that there is a possibilities of more in number of population. यानी अगर हमारा population day by day increase हो रहा है, it means that the growth rate is very fast or very increasing day by day, है ना. हमारा जो growth rate है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है और उनमें फास्टिंग भी आते जा रही है. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ रेट. सो ग्रोथ रेट इज द इंक्रीज इन नंबर. ग्रोथ रेट का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर, मतलब नंबर्स क्या है, इंक्रीज होते जा रहे हैं. एंड ऑफ इन इंडिविजुअल्स, किसकी, जो इंडिविजुअल्स है इन अ पॉपुलेशन. सपोज यहाँ पॉपुलेशन है कोई, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म में जनरली इनके इंडिविजुअल्स में ग्रोथ होते जा रही है, इट इज कॉल्ड ग्रोथ रेट. तो इसी पॉपुलेशन में जब इंडिविजुअल्स इंक्रीज होते जाएंगे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, प्रोडक्शन, जो भी प्रोसेस, उसके बाद जब इनके इंडिविजुअल्स तैयार होते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ रेट. मतलब डे बाय डे इनकी जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होते जाएगी, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ रेट. सो ग्रोथ रेट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रोथ रेट? यू हैव टू मेंशन ऑलवेज द फॉर्मूला आल्सो, ठीक है. फॉर्मूला भी आपको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ग्रोथ रेट मीन्स एनुअली बर्थ. एनुअली बर्थ मतलब जितने साल भर में, एनुअल जो साल भर में जितने भी बर्थ होती है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड इनटू मिड ईयर पॉपुलेशन. मतलब बीच का कितना पॉपुलेशन है, दैट इज द एस्टिमेटेड एंड अप्रॉक्स, ठीक है, उससे डिवाइड देना, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ रेट हमारा निकल जाएगा. सेकंड फेज में हम बात करते हैं डेथ रेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेथ रेट? सो डेथ रेट का मतलब होता है द डेथ रेट is the number of people per thousands who die in a particular area. ठीक है, या तो हमारे ऐसे ह्यूमन बींग्स जो कि पर थाउजेंड के हिसाब से क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सपायर होते हैं, खत्म होते हैं, या फिर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर किसी ऐसे खास समय के बाद उनका जो है ना डेथ स्टार्ट हो जाता है. उसी प्रोसेस को हम डेथ रेट के नाम से जानते हैं.
and it is also measured by the mathematical formula death rate is equal to annually death, okay, and into 100 by mid year population. So annually death का मतलब भी होता है annually death into 100 upon mid year population, ठीक है. So population is a very important things because इसमें growth rate और डेथ रेट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर वी नो दैट देयर इज अ सेवरल अबायोटिक फैक्टर व्हिच कैन चेंजेस ड्रास्टिक चेंजेस इन द ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स आल्सो. तो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण अभी हमने टेम्परेचर वगैरह भी सारा चीज देखा, तो उसमें टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है उससे ह्यूमन बीइंग्स को काफी प्रॉब्लम होता है. अगर टेम्परेचर कम हो गया, माइनस डिग्री में चला गया, या टेम्परेचर मे बी 40 डिग्री अबव जा रहा है, सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट्स इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स आल्सो. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट टर्म गिवन बाय बायोलॉजी. बायोलॉजी के द्वारा कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जिसको हम दो वर्ड्स के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन एंड नेक्स्ट इज एस्टिवेशन. हाइबरनेशन का मतलब होता है these are the winter problem and these are the summer problem. ये विंटर में प्रॉब्लम्स होते हैं, ये समर में प्रॉब्लम्स होते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोस्टली सरवाइव करते हैं विंटर एरिया में, लेकिन उनको काफी प्रॉब्लम्स होती है और वो उस विंटर को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है. वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो लेट्स फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाइबरनेशन. हाइबरनेशन का मतलब होता है इट इज कॉल्ड अ विंटर स्लीप. इसको हम जनरली विंटर स्लीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. एंड विंटर स्लीप वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास आल्सो. एनिमल्स रेस्ट इन द वार्म प्लेसेस. इसका मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो वार्म प्लेसेस पे रेस्ट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट लास्ट फॉर लॉन्ग विंटर मंथ, यानी विंटर मंथ जब तक चलता है तब तक ये हाइबरनेशन पीरियड में होते हैं. इसे हम डॉर्मेशी या स्लीपिंग मोड के नाम से भी या स्लीपिंग स्टेज के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन. ओके, सो इन नेक्स्ट फेज we have to discuss the estimation and different biological terms we will also discuss. Okay, so अगर हम बात करें, so hibernation we have discussed that most of the organism has problem for coldness, यानी उनको ज्यादा प्रॉब्लम थी कोल्ड से यानी ठंडी से. एंड अगर हम बात करें एस्टिवेशन की, so most of the organism have problem of summer season. summer season मतलब इनको ज्यादा हीट से काफी प्रॉब्लम्स होते हैं. so summer की अगर हम बात करते हैं it is called the summer sleep. मतलब समर में इनको काफी प्रॉब्लम होता है, तो वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, सो एनिमल रेस्ट इन अ कूल, यानी इनको गर्मी से ज्यादा प्रॉब्लम होता है. सो मोस्टली ये ट्राई करते हैं कि हमको ऐसा कूल एनवायरनमेंट मिले, या तो मॉइस्ट कंडीशन हो या तो सैडी प्लेसेस हो. सैडी मतलब जहां से जनरली इनको छाया वगैरह इजीली मिल सके. ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर इज अ टू मच डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. हाइबरनेशन का मतलब होता है ऐसे स्पीसीज दोस हैव प्रॉब्लम ऑफ कोल्ड, इनको ज्यादा कोल्ड से प्रॉब्लम होता है इसलिए ये विंटर स्लीप हो जाते हैं, ठंडी के समय ये शांत हो जाते हैं. एंड एस्टिवेशन की बात करते हैं, एस्टिवेशन में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो समर के कारण होता है. सो दिस इज कॉल्ड समर स्लीप. इसको हम समर स्लीप कहते हैं, ठीक है. समर के टाइम में ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं. नेक्स्ट, अगर हम बात करें, सो इट लास्ट फॉर द डे टाइम, मतलब ये दिन भर जनरली डे के टाइम पे क्या रहते हैं जनरली सरवाइव करते हैं. और जब से नाइट्स हमारा जब कूलर, क्योंकि डे टाइम इनको काफी प्रॉब्लम करता है. डे टाइम में जो सन की रेडिएशंस होती है वो काफी हार्मफुल और काफी डेंजरस भी होती है उस टाइम पे, और काफी ज्यादा हीट होती है जिस कारण से पूरा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है. बट व्हेन द नाइट्स आर कूलर, लेकिन जब नाइट्स बहुत ठंडी यानी रात जब धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विल कम आउट. ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो समर को खत्म करने के लिए वो क्या करते हैं जनरली उस नाइट टाइम पे बाहर की तरफ निकलते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन. सो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सो मेनी टाइम दिस क्वेश्चंस कम्स, ठीक है. बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दैट क्लास. ओके, सो एक्टोथर्म्स की बात करते हैं तो दीज आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. वी हैव डिस्कस्ड द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो मेनी टाइप्स ऑफ फीचर्स एंड फाइलम. वी हैव डिस्कस्ड वन ऑफ देम कोल्ड ब्लडेड, वन ऑफ देम इज वार्म ब्लडेड, ठीक है. सो बहुत सारे फीचर्स हम डिस्कस किए हैं. वन ऑफ दिस स्पीसीज बिलोंग्स टू 4 चैम्बर्ड, वन ऑफ दिस स्पीसीज बिलोंग टू 3 चैम्बर्ड, बहुत सारे ऐसे हमने डिस्कस किया है. सो जनरली एक्टोथर्म्स इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ज्यादातर ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं. कोल्ड ब्लडेड में हमने जैसे फिशेस वगैरह के बारे में भी डिस्कस किया है. ओके, नेक्स्ट, दे आर अनेबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं. एंड विच चेंजेस विद द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है उनके सराउंडिंग के हिसाब से ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. सपोज
फिशेस जहाँ पे भी रहती हैं उनके सराउंडिंग में जैसे भी टेम्परेचर चेंजेस होते हैं ये उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, सो दे आर अनेबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड मोस्ट केसेस में क्या होता है, दे जनरली डाई, वो खत्म हो जाते हैं। सो दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इक्टोथर्म्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दे हाइबरनेट इन विंटर्स, विंटर्स में हाइबरनेट करते हैं, एंड एस्टिवेट्स इन समर, जनरली समर में ही एस्टिवेट करते हैं। सो वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो these are endotherms. What is endotherms? Endotherms की बात करते हैं, so mostly they are called as warm-blooded as human beings. अगर हम बात करते हैं human beings और most of the animals are also called as endotherms के बारे में भी हम देख चुके हैं जो warm-blooded होते हैं। Okay, next they are capable of maintaining their body temperature. जैसे जैसे सराउंडिंग चेंज होता है ये अपने बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में कैपेबल होते हैं। सो एज कंपैरिजन टू एक्टोथर्म्स द एंडोथर्म्स इज मोर सुपीरियर, ये ज़्यादा सुपीरियर होते हैं क्योंकि ये वार्म ब्लडेड होते हैं, दे हैव कैपेबिलिटी टू मेंटेनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी कर सकते हैं। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, they can regulate their body temperature so they do not need to show behavioral adaptation। जैसे इनको behavioral adaptation की जरूरत थी, जैसे hibernation की जरूरत पड़ती है विंटर में, and estivation is important for summer, estivation इनको जरूरत पड़ती है समर में। बट एंडोथर्म्स में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स आते हैं, इनको दे डू नॉट नीड टू शो बिहेवियरल एडाप्टेशन, इनको किसी भी प्रकार का देयर इज नो नीड ऑफ एडाप्टेशन एंड हाइबरनेशन प्रोसेस, इनको किसी भी प्रकार का कोई भी हाइबरनेशन और कोई भी एडाप्टेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी ऑफ हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। सेकेंड, एस्टिवेशन के बाद हमने देखा एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू वन होमवर्क। द होमवर्क इज राइट द difference between, you have to mention the three or maybe four difference between hibernation, okay, hibernation and estivation, okay. So this is the first homework, and second you have to give me the answers and also difference between ectotherms and endotherms, okay. So this is the very important because so many times hibernation and estivation came and it consists of maybe 4 to 3 months. So this is the very important question and it is also, so you have to complete in your biology copy and send me a pic in my personal WhatsApp. Till then, whatever I have taught you, you have to revise all the topic, and if you have any doubt you can contact me. Thank you, students.